Now am I audible? Okay, so the challenge was कि भाई अगर डेटा बढ़ जाता है तो क्या करें. So better we should always also go with tables, है ना? You know what are tables? When you talk about tables, table is a strategy for databases. So whenever you work in database system, you always you will notice that like the sheets are divided in tables. Like the database itself has, I'm getting repeated my voice here. The database has lots of tables. I have table 1 and table 2 and chalte rehta hai. Every table has fields and rows. That is called records. Where a column is a and a row is called a record. These are database terms hain, right? So why it is called table? Because what happens, many information are stored in one file, but in different tables. ऐसे समझ लो कि these are the children of a symbol file. Excel भी वैसा ही है. We have one workbook, but we have so many sheets down, right? But when you want to relate the things, suppose मुझे relations पैदा करने हैं, I want to relate two sheets. Now you'll ask me why you want to relate, sir. I want to relate because my some information is in this particular sheet and some other information is in that sheet. इसका मतलब ये होता है रजत कि आपका suppose example ले लो कि I have say purchase ID का column in this sheet where the purchase ID का number is this one. ठीक है? और the detail of this 10232 is somewhere else. So यहाँ पे just I have purchase ID this and party कौन है जो भी जिससे भी हो consumer है जो भी है, right? So who is the consumer, who is the customer? So I just have the customer and the customer again I have a ID over here. So I just have the purchase ID and the customer ID. In purchase ID तो ये पूरा मेरे पास में ऐसा ही डेटा है 1045. You getting me? Real time में आपका डेटा ऐसा रहेगा and the customer ID will be something like this. So this customer IDs will always be repeated. ऐसे repeat होते रहेंगे. Order purchase ID will be different. So what I want to say is, I want to find out कि customer ID 101 ने total क्या-क्या products खरीदा. Products का information is not here. Product का information is stored somewhere else where I have the ID, purchase ID जो है उसका detail यहाँ पर है कि purchase ID जो है 102. इसने क्या-क्या खरीदा है. So again I have the list of the product what he has purchased in purchase ID 2. So इसका रेट क्या है, उसका रेट अलग जगह पे है. So if एक ही रिकॉर्ड है बट वो रिकॉर्ड इज ब्रेक्ड, परचेस आईडी 232 का इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड समवेयर एल्स. अभी ये 102 का प्रोडक्ट क्या है, चलो शुगर है. अभी इसने क्या खरीदा, शुगर किसने खरीदा है, शुगर 101 कस्टमर ने खरीदा है. अब 101 कस्टमर का इंफॉर्मेशन किधर है, वो मेरे कस्टमर आईडी का एक अलग टेबल है. सो उसमें पूरा कस्टमर का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका नाम सब है. सो इफ यू हैव समथिंग बाइफरकेटेड डेटा, तो इसके लिए उसको रिलेशंस बनाना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. क्योंकि एक ही जगह पे सब स्टोर्ड रहता था तो टेंशन नहीं था, बट अभी नाउ इट्स ब्रोक. सो ओके, टेबल बनाने के फायदे बताता हूं मैं. तो आज के बाद हम लोग, नाउ दिस इज कॉल्ड अ रेंज, जहां पे आपका A1 से लेकर आई हैव द I60 तक, आई हैव सो मेनी. तो हम लोग ने डेटाबेस में आई थिंक वी हैड ऑलरेडी मेड सम
names also. So let me, okay, नहीं, चलो निकाल दिया मैंने इसको. दर्शन, इस रेंज को कन्वर्ट इनटू टेबल. इसका फायदा बताता हूँ, इसका फायदा क्या क्या होगा. फर्स्ट, लेट मी रिमूव दिस fills, no fills, but still there is a fill. क्यों ऐसा भाई? सर मे भी पहले टेबल बन चुका है इसका, तो बाद में अनडू नहीं, करके अगर था. पहले टेबल बना होता ना तो ऊपर आता ना टेबल का ऑप्शन. सर सेल स्टाइल से नॉर्मल कर दो. वही देख रहा हूँ मैं. सेल स्टाइल से जाकर नॉर्मल कर देते. अभी आप देखो फिर भी ये नॉर्मल नहीं हो रहा है. इसका क्या कारण? कभी कभी देखो कोई कोई चीजें ओके नहीं ले रहे हैं वो. डिवाइड कर दो सभी को. वही करना है, लेकिन क्यों? वो सोचो ना, आप ये भी देखो ना, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है कि दिस शुड नॉट हैपन. अब मैं इसको जब उसको बोल रहा हूँ कि सेल स्टाइल इज नॉर्मल, तो वो नॉर्मल लेना चाहिए था मुझे. चलो इसको वाइट कर देते हैं. द लास्ट ऑप्शन यही है. आई विल सिलेक्ट ऑल माय डेटा एंड द बैकग्राउंड को लेट मी मेक इट वाइट. देखो वो भी नहीं हो रहा है. सर कॉपी करके नई शीट बना लो, पेस्ट स्पेशल कर नहीं, दो. वो तो मैं करूंगा लास्ट में, लेकिन ये सब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए उसको. कभी कभी सर इस सोचता हूँ. कारण तो नहीं कोई नेम्ड रेंजेस हैं? नहीं नहीं, निकाल, कोई नेम रेंज नहीं है. ओके, आई डू वन थिंग. इसको मैं कॉपी करके लेट मी टेक इनटू अ न्यू वर्कशीट एंड पेस्ट हो गया. अरे बाप रे बाप. चलो लास्ट ऑप्शन एक ही करते हैं. आई कम हियर, आई जस्ट डू दिस एंड इतना ही. ये भी बाकी है इधर. आई डोंट हैव माउस टुडे. टेबल बनाते हैं. टेबल बनाने के देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. यू कैन यूज एनी वन. एक है, आई कैन डायरेक्टली गो हियर, होम में जाके मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेट एज टेबल. दिख रहा है आपको? जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आई कैन टेक एनी पर्टिकुलर थिंग. किया क्या उसने? कमाल है यार ये. इस शीट के अंदर कुछ तो आत्मा आ गई है. सर विदाउट सिलेक्शन करेंगे तो भी हो जाता है? सब हो जाएगा, वो अपने आप उसको लेना चाहिए ना भाई. चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं. सर कंट्रोल टी शेड मारते हैं. प्रोटेक्शन तो नहीं लगी है इसमें कोई? कंट्रोल टी करके देखते हैं लास्ट. कंट्रोल टी. ओके, जैसे प्रोटेक्शन मैंने, तो नहीं लगी हुई इसकी कोई? सॉरी, प्रोटेक्शन तो नहीं लगी हुई कोई शीट की? नहीं नहीं, चलो ना कंट्रोल टी. दर्शन याद रखना, यू प्रेस कंट्रोल टी एंड इसको टेबल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. सो कम हियर एंड से कंट्रोल टी. वो आपको पूछता है कि वेयर इज द डेटा. आई से दिस इज माय डेटा. इज आस्किंग मी कि डू योर डेटा हैज द हेडर्स. आई से यस. ऊपर वाले जो टाइटल्स हैं, क्योंकि नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल बिकम अ टेबल एंड द फर्स्ट रो विल बी कंसिडर्ड एज योर फील्ड नेम्स. ओके, उसको वो फील्ड नेम बोलेगा. एंड ऐसे ओके, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ये ऐसा टेबल बन गया. एंड यू कैन जस्ट सी अप द डिजाइन्स वी हैव. ओके, बट यहाँ पे एक तकलीफ ये हो रही है कि चलो अभी क्या करेंगे. देखो ये बैंडेड रोज, ये सब ऑप्शन है. अभी आई विल गेट इट. अब मैं यहाँ से जाके आई विल टेक सम मीडियम टाइप ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम हियर. ओके, एंड देन आई गो टू. अरे यार ये डेटा में बहुत गड़बड़ चल रहा है. आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है. नहीं नहीं, ये शीट में कुछ तो गड़बड़ है. एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ. रुको, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम ना टू R&D. नहीं तो वो सब भी कर लेता मैं. इतना टाइम नहीं है अपने पास भाई. रुक जाओ.
सर ये शीट जरूर भेजना, पर मैं भी, मुझे भी मजा आता है से पंखे लेने में। हाँ यार, आप लोग इस शीट पे देखो। लेट मी चेक। यू विल नॉट बिलीव, आज मैं 8 आवर्स इसी शीट के ऊपर लेक्चर लिया हूँ, और आई यूज द टेबल्स, आई मेड इट सो मच, बहुत कुछ किया मैं। ये प्रॉब्लम नहीं आया मुझे वहां पे। लेट मी रीस्टार्ट द एक्सेल। ओके, okay, now this is this one sheet. Let me convert this to table. I press Control T, table as headers. I say okay. Okay, now this has been converted to tables. Okay, जैसे तुम लोग इसको convert करते हो ना टेबल में, you will see one more top menu ऊपर आ जाता है, where I can have table designs. तो यहाँ पे banded rows निकाल सकता हूँ and डाल सकता हूँ. I can have banded columns over here. इससे फायदा ये होता है कि it will just catch your eye where you have left. If you have a huge large database, टेबल अगर लंबा होगा ना, तो पता चलता है कि ओके फाइन, इफ यू आर जस्ट मूविंग टू सैलरीज, तो हम लोगों का ध्यान रहता है कि ओके, आई वाज आफ्टर दिस कॉलम, सो इट्स क्लियरली ईच एंड एवरी कॉलम इज डिवाइडेड। तो ऐसे निकालना है तो निकाल सकते हो आप। देन यू ऑल्सो हैव द टोटल रो ऑप्शन ओवर हियर, है ना। जैसे टोटल रो पे क्लिक करते हो, यू विल जस्ट सी द डाउन टोटल ओवर हियर। Okay, this is not only total, this is automatic things. Is I'm just giving you the plus points that why you should make table. Okay, सबसे पहला प्लस पॉइंट तो देखा, वो तो ठीक है बच्चे लोग का। Now here इसका फायदा ये है कि suppose if I go here bottom, you can just see there is a drop down over here. So I don't need to now write the formulas and functions over here. I say do one thing, get me the total of my salary, and I just want to see how many people are there. I just want to count. There are 59. आ रहा है समझ में? ओके, एक तो ये बात हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सारे जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सब मिल जाएंगे तुमको यहाँ पे सब। तो यू कैन अप्लाई द थिंग्स ओवर हियर। ओके, दूसरा फायदा ये है कि सपोज यू आर ऑन टॉप, ठीक है, एंड व्हेन आई कम डाउन, यू विल सी दैट योर हेडर्स आर ऑलवेज विजिबल। देखो आप, जहाँ पे आपका ABCD लिखा था, अब वहां पे आपके कॉलम के फील्ड्स आ गए ऑटोमेटिकली, सो दैट यू डू नॉट मिस व्हाट इज रिटन देयर। नहीं तो हम लोगों को क्या, वो फ्रीज करना पड़ता है। तो अभी फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा ये फ्रीज हो गया। एक तो ये फायदा हो गया। ओके, और फायदा ये भी हो सकता है कि सपोज यू आर ऑन द लास्ट रिकॉर्ड, ओके, एंड सपोज यू वांट टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड नाउ हियर। सो एक तो फायदा ये है कि मैं यहाँ पे आके, इफ आई एम ऑन द लास्ट रिकॉर्ड नाउ, इफ आई प्रेस टैब की, so it will automatically add records for me, so that table will be automatically, it will get increased. समझ में आ रहा है? वो टेबल था इसके लिए, ये फायदा है। ओके, और फायदा ये है इसका कि सपोज लेट्स से कि सपोज इफ आई ऐड वन एडिशनल कैलकुलेटेड फील्ड, या कुछ भी एक एडिशनल फील्ड डाल रहा हूँ मैं, तो if I am near the data, if I am over here and as I say I want to give a bonus, or suppose let me say that I have a table design something banded columns में, ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ I want to add one more calculated field called let me give a bonus to my people. जैसे enter मारूंगा, now this bonus will be automatically given the band, because वो समझ गया कि okay, let me take this in the part of the table and then I can say that this is nothing but, देखो हाँ, खाली एक ही फॉर्मूला डालता हूँ and I say this is nothing but, देखो salary, automatically he took the name of the salary, so it's a salary is getting multiplied by 10% क्योंकि मुझे सबको
10% bonus देना है, and the moment I press enter, don't need to drag it down because automatically it will take care कहाँ तक करना है. छोटे छोटे फायदे हैं इसके. Okay. और फायदा ये, और एक बड़ा फायदा ये है कि suppose if you take your mouse here and if you click on this J column, तो the entire column is selected. है कि नहीं? कभी कभी जरूरी नहीं होता है, हमको सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है. Unnecessarily why you are selecting so many downs which are empty records? So what you should do, you should always come here and see now you are getting one ऐसा टाइप का शीट मिलता है. ये this arrow means only the columns. When you come here, so now this is only and only that till my 60th number, that is only selected. Okay, ये फायदा हो गया. अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा और एक सबसे important फायदा ये that we got that advantage when we used named ranges. So now without using the names, मैंने अभी तक names नहीं बनाया, I don't have any names over it, right? But still now see what happens. Suppose you want to take the total, you want to take the sum, if you want to do anything, what I will do here, I just say equals to, okay, wherever I am. What is the name of your table? The name of my table is, just go and check. Just go to table design and just see what is your name. It's table 2. ये पूरे टेबल को वो टेबल 2 बुलाता है, करेक्ट? एंड नाउ सपोज इफ यू आर ओवर हियर and I just want to do some addition, so I will just zoom that. और अगर मैं अभी बोलता हूँ उसको कि equals to, I just want to take the total, तो he is asking me किसका टोटल चाहिए, so I will use my name of the table. आपको टेबल का नाम याद है? You can change the name. I could have given it data, my data or anything, but I know it's table 2, so I just type TAB. तो मुझे पूछ रहा है, is this the one you are looking for? Okay, so now this becomes one entity, it becomes one variable. So I say yes, I want to use this one. तो मुझे बोलता है table 2 का क्या? So that also you don't have to remember कि कौन सा field चाहिए आपको. You just have to open the box bracket now because this is a syntax when you're using the table. जैसे मैं इसको box bracket खोलता हूँ, you will get the list of all the fields of this table. मैं इसको बोलता हूँ I want the total of salary 2. और salary 2 बार आ गया. अच्छा ठीक है, salary का ले लो. Okay, and tab, close the bracket and close this. So it's 19,000, sorry, 19,21,554. Okay, now इसका फायदा और एक पता है क्या है? This will be dynamic. अगर आप उसको मैन्युअली लेते ना कि from B1 to B60 तो प्रॉब्लम हो जाता. See here, I will take the total somewhere over here. मैं यहाँ पे टोटल लेता हूँ. ऐसे equals to, take the total, मुझे बोलता है किसका लेना है. ऐसे it's table 2 का क्या? table 2 का ऐसे salary, bracket close and enter. ठीक है? And now your table is actually till here. दिख रहा है आपको? यहाँ तक टेबल है. But if in future if you add some rows, so if I type 1 lakh more, you can just see this. This is getting updated because जितना टेबल में आप रिकॉर्ड्स डालोगे आपका टेबल उतना ग्रो होते जाएगा. No need to tell him now extend my rows because he is not following any rows. He is following the salary field and the salary field will always be the part of the table. जब तक टेबल चलेगा तब तक, है ना? ओके, और एक फायदा बताता हूँ मैं. चलो, एक फायदा ये भी है. सपोज आई रिमूव द टेबल. अभी लेट अस कन्वर्ट दिस टेबल टू अ नॉर्मल रेंज हाउ इट वाज बिफोर. पहले कैसा था उसको वैसा ही कर देते हैं. उसके लिए क्या करने का है? अगेन गो टू टेबल डिजाइन एंड दिस टाइम आई से कन्वर्ट टू रेंज. सो द टेबल विल बी नॉर्मलाइज जैसा था पहले. सो अभी क्रिश का सारा पावर निकल गया इसमें. जो क्रिश की शक्तियां थी ना इसके अंदर वो सब चली गई. उसके अंदर सारी शक्तियां चली गई. अब देखो क्या होता है. सपोज इफ आई यूज फॉर्म्स. आप लोग फॉर्म्स यूज करते हो कभी? लेट अस यूज सम फॉर्म्स. अगर मुझे डेटा एंट्री करना है, आई वांट टू गिव टू समवन एल्स कि भाई ये काम कर, तू डेटा एंट्री कर. सो अननेसेसरीली द पर्सन विल डिलीट समथिंग. इसको डिलीट नहीं हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म लेके आता हूँ उसको. ओके, आई डोंट हैव द फॉर्म ओवर हियर, सो आई विल गेट द फॉर्म. आई विल शेयर द एंटायर स्क्रीन. आई डोंट नो आप लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे बताना. ओके, मैंने राइट क्लिक किया इधर. I just say customize the ribbon. Can you see this? My screen. Customize the ribbon. Yes, sir. Okay. Okay. Now you tell me, like, are you getting this Excel option? Yes, sir.
यस सर। ओके, मुझे वही डाउट था, पता नहीं मिला ये आपको मिलता है कि नहीं। यूजुअली मैं पूरा स्क्रीन ही शेयर कर देता था। ओके, नाउ हियर आई विल जस्ट सर्च फॉर फॉर्म। तो आई विल गो टू मोर कमांड्स में जाके आई जस्ट से sorry, show me all commands, right? Okay, then I'll go for forms. Forms देखो, ये रहा form. Can you see this form? Okay, I'll do one thing. इस form को I will put in data में डाल देता हूँ मैं इसको. Data के अंदर let me put it. Data में किधर डालेंगे हम लोग? एक new group में डाल देता हूँ मैं इसको. And I will just say, अच्छा already new group में क्या है क्या कुछ? अच्छा already new group में form डाला हुआ है मेरा. ठीक है ना? तो just check करता हूँ मैं इसको. I'll cancel it. Data में जाता हूँ and you can just see in the new group you must be, you can see that ये रहा फॉर्म. एंड इफ इट आप में नहीं होगा तो यू हैव टू जस्ट ऐड दैट. यू वांट टू ऐड इन डेटा, यू वांट टू ऐड इन फॉर्मूला, यू वांट टू ऐड इन इंसर्ट फॉर्म्स. तो इंसर्ट के अंदर किधर डालना है? टेबल्स में डालना है, एडिन्स में डालना है, चार्ट्स में डालना है. तो दिस आर ऑल उस टैब्स के ऑप्शंस हैं. तो यू कैन सिलेक्ट दैट एंड यू कैन पुट दैट एडिशनल एडिन्स ओवर हियर. अब देखो जैसे मैं डेटा में जाके मैं बोलता हूँ फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? देखो यू कैन सी दिस, ही शोइंग मी माय एंटायर डेटा. ऐसे फाइंड नेक्स्ट 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 सारे डेटा आ गया मेरा यहाँ. ठीक है. Okay, now suppose if I'm adding one data, I'll do one thing. I'll come here. आपको दिखाता हूँ मैं. चलो, I'll come to the last record. I'll come here. And now I say form. I'll add one record over here. You can just see record background में add हो जाएगा. I'll just say new. मुझे बोलता है what. So this is my new record. Name क्या करना है? I say name is it's Nipun. Then item is this time sugar. Location is India. ID is 3454 जो भी है वो. Department A. Post is manager. And bonus जो भी देना है. ओके, देखो पीछे आ गया. ठीक है, जो डाला था मैंने आ गया. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? लेट मी गो टू, ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाल दिया ना टेबल. नाउ दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्टेड रेंज. ओके, नाउ आई विल गो टू फॉर्म अगेन दिस टाइम. एंड जो लास्ट रिकॉर्ड था ना मेरा, प्रफुल किधर है? ये प्रफुल है क्या? ओके, निपुण का रिकॉर्ड कहाँ गया? अच्छा, निपुण का रिकॉर्ड उसके बाद क्यों आया भाई? ओके ओके ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था. ठीक है, चलो लेट मी रिमूव प्रफुल का रिकॉर्ड. आई जस्ट गो टू प्रफुल का रिकॉर्ड. ऐसे डिलीट फ्रॉम हियर. देखो प्रफुल का रिकॉर्ड उड़ गया. ठीक है, ठीक है ना? हाँ, वो बाद में इसके लिए आया क्योंकि टेबल नहीं था. देखो यही फायदा टेबल हुआ है. नहीं हाँ था। सॉरी, टेबल निकाल दिया ना. बट नाउ इफ यू डिलीट फ्रॉम द फॉर्म, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट बैक योर डेटा नाउ. अभी आप कंट्रोल जेड से इसको ला नहीं सकते हो. बस मेरा कहने का मतलब ये. आई डोंट नो किधर गया. कंट्रोल होम से कुछ और ही हो गया. बट नाउ सपोज if this is a table, I say okay, now this is a table. In the table this is also included, so I'll have to remove this. And go to table design. Okay, total रो आ गया. ठीक है, ये क्या आइटम है? इसको निकाल देते हैं. Okay, now I go to form. हाँ, अभी देखो, I go to form, I go to, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन है. Let me remove Nazib.
ये नजीब आ गया, लास्ट रिकॉर्ड है. Let me remove this. I say delete Nazib. I say okay. It's gone. I am out of the form. Just press Ctrl Z again to get back Nazib. Table hoga, so you will always get advantages of this. So always always see that your data is always into a table. Even though you have a small, say for example, मेरे पास यहाँ पे sheet 2 है, and here just I have, you know what? I have the ID, product ID, that is called PID, and I have product. So 1, 2, 3, 4, 5. So I have sugar, apple, mango, and so on. या फिर इतना ही है, तो भी मैं क्या करूंगा पता है? I will select only this portion. अगर एग्जाम्पल, और इसका ही मैं टेबल बना देता हूँ. I say it's headers. ये टेबल बन गया. इसका फायदा ये होगा कि now whenever I use this in my drop down list everywhere, whenever this is increased, okay, अब देख सकते हो this table will always increase. I'll show you in the validation portion. Okay, तो suppose अगर मैंने यहाँ पर एक और एक ऐड कर दिया chiku, so this list will keep on updating if I am using this list anywhere, any part. तो बस इतना याद रखो, it becomes dynamic, that's all. और आगे चल के अभी हम लोग टेबल का बहुत यूज करेंगे when we'll be using pivot tables and pivot chart. तो your data should be in a table for proper reportings. चलो, now comes the very important topic. ठीक है, VLOOKUP. थोड़ा एसी चालू करना पड़ेगा, गर्मी लग रही है, रुक जाओ. Okay, now for me, I don't know whether I will get the answer or no. इस तरह से खामोशी है आज. But it will really help me if someone tells me, if any of you can tell me that you are new to VLOOKUPs and some good lookups, or you are not so good in VLOOKUPs. ऐसे कितने लोग हैं? Okay, I got one Naveen. Because you know, if no one will answer, then I will assume that you people know VLOOKUP, so I will skip that things and I'll go ahead. And you might miss the important, very important function called lookups, जिसके लिए आप Excel सीख रहे हो. चलो ठीक है, चेतन है और नवीन है. Rest everybody feels that Sunita. they know VLOOKUPs very. Okay, only two. Okay, I think but दर्शन भी होना चाहिए. दर्शन is not there. चैट पे भेज रहे सर काफी लोग, मतलब अच्छा, 3-4 चैट लोगों ने पे भेज रहे क्या? सर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, बस चलो, बहुत लोग नहीं है तो चलो एक एक करके सीखते हैं पहले हम लोग, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. तो जो लोग सच में नहीं जानते हैं ना, आई रिक्वेस्ट देम कि अगर नींद आ रही है तो थोड़ा उसका मुंह धो लो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा थका हुआ मैं हूं आज. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल बेस्ट नाउ. सबसे पहले VLOOKUP क्या करता है, और वील बी यूजिंग ऑल द लुकअप्स. उसके पूरे पूरे अंदर घुस जाऊंगा मैं, भी आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है. इट्स लाइक अ फंक्शन. वो एक फंक्शन है, और फंक्शन का काम होता है आपको चीजें ला के देना. Every function does its own job. So VLOOKUP says, I have my own duty. I will give you something what you are asking me for. So what is that VLOOKUP gives you, and why the VLOOKUP is so much popular? Why is it so popular?
Why VLOOKUP is so in demand rather than we have so many functions? Only the reason is VLOOKUP find something for you and gets you. So आप सोचोगे what is the big deal? It's really a big deal. अगर आपके पास में lakhs and lakhs of data है और तुम्हारे पास में कोई ऐसा बंदा तुमने अपॉइंट किया है अगर जिसको तुम बोलते हो मुझे ये लाके दो, कंघी लाके दो, तो तुमको एक फड़क से करके लाके देता है. यू से आई वांट अ सेफ्टी पिन, तो आपको सेफ्टी पिन लाके देता है. सो मेरे लिए वो बंदा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट because he is actually whatever I am asking for, he is getting me. So what VLOOKUP will do from lakhs and lakhs of records, he is the one who can find out the data. He will go to that particular data and brings out and pulls the data for you. Bas, that is called pulling data from the database. वो VLOOKUP करता है. For example, how it works, the new students, the one who are new to this function, please concentrate. Whenever I called VLOOKUP, द आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले मुझे वो आर्ग्यूमेंट्स पूछता है कि क्या चाहिए. तो सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू. सो लुकअप वैल्यू इज समथिंग, यू नो व्हाट, याद रखना. लुकअप वैल्यू मतलब आप उसको बोल रहे हो कि वी लुकअप कैन यू लुक फॉर रजत. मतलब तो पहली बात तो बिफोर यू स्टार्ट वी लुकअप यू शुड नो व्हाट यू वांट. सो फॉर एग्जांपल वी लुकअप कहाँ यूज होता है. चलो, आई वांट टू नो I want to know the bonus given to Rajat. इसके लिए भी लुकअप यूज होगा. मुझे रजत को कितना बोनस दिया गया है, सपोज एग्जांपल ले, मुझे फाइंड करना है. Whenever there is a question like this, you should always go with VLOOKUP. रजत को कितना बोनस मिला है, मुझे मालूम नहीं है. I don't know whether रजत is there or no. That is Excel's job. Why should I worry कि रजत है या नहीं है? I am just interested in whether if रजत is there, show me, else चलेगा. क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Okay, रजत का बोनस. Okay, so now you should know रजत कहाँ पे, where रजत will be sitting. रजत will be sitting in the name column, and जो name column है मेरा, वो मेरा ये वाला कॉलम है, this one C कॉलम है. ओके, एंड द बोनस जो है मेरा वो यहाँ पे है. ओके, अब मैं VLOOKUP के पास जाता हूँ. अब देखो फॉर्मूला हमारा कितना आसान हो जाएगा. आई से VLOOKUP, मुझे बोलता है व्हाट यू वांट टू सर्च, व्हाट इज योर वैल्यू, क्या ढूंढना है. ऐसे आई जस्ट वांट टू सर्च फॉर रजत प्लीज. तो कभी भी VLOOKUP में यू हैव टू स्टार्ट द लुकअप वैल्यू जो आपको चाहिए वो, कॉमा. दोज हु फील कि नहीं समझ में आ रहा है, अगेन प्लीज यू कैन आस्क मी. लुकअप वैल्यू इज समथिंग व्हाट यू नो, जो आपको देना है उसको. जो आपको नहीं पता है वो लुकअप वैल्यू नहीं पता है वो क्या है, वो बोनस है. वो तो मेरा VLOOKUP लाके देगा. लेकिन किसका बोनस? रजत का. रजत यू नो, प्लीज स्पेसिफाई दैट. VLOOKUP लुक फॉर रजत फॉर मी. मुझे बोलता है ओके. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल एरे. इट मींस वो आपको पूछ रहा है कि रजत को मैं कहाँ ढूंढूं, मतलब वेयर यू वांट मी टू सी रजत. तो आई से माय रजत इज इन टेबल 3 का नेम. करेक्ट, दे सकता हूं ऐसे, लेकिन ये मेरे को एरे मांग रहा है. इट मींस टेबल 3 का एरे. आप ये तो दे सकते हो. अगर मैंने इसको ऐसे दिया तो लेट्स सी, आई गो हियर, आई से इट्स दिस कॉलम. तो भी उसने वही किया, देखो. ठीक है, एंड देन रेस्ट यहां से लेकर आई हैव टू गिव टू, देखो ऐसे बनेगा आपका फॉर्मूला. यू गेटिंग मी? दिस विल बी द फॉर्मूला. फिर से दिखा देता हूं. आई से VLOOKUP, अभी टेबल है इसके लिए. ऑलवेज इफ देयर इज नो टेबल देन यू हैव टू गिव द रेंज. VLOOKUP व्हाट इज द लुकअप वैल्यू. ऐसे इस रजत. मुझे बोलता है रजत कहाँ ढूंढना है. मैं बोलता हूं टेबल 3 जो है मेरा, उसका नेम कॉलम में ढूंढना है. ओके, नाउ दैट आपको बताना पड़ेगा कि ये कहां से कहां तक, मतलब नेम तो मिल जाएगा उसको,
रजत मिल जाएगा अगर नेम कॉलम में होगा तो, बट व्हाट यू वांट, आपको तो बोनस चाहिए ना, तो उसको बोलना पड़ेगा और बोनस तक। ठीक है, एंड देन यू गेट मी कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन सा नंबर? जहां पे बोनस पड़ा है आपका। हमारा बोनस कहाँ पड़ा है? इन के कॉलम। अभी काम करते हैं एक्चुअली ना, यहाँ पर वी लुकअप सीखने के लिए तुम लोगों को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली हम लोगों को तकलीफ दे रहा है फिलहाल। ओके, because now you all are learning, so you all should know what is a data range. Now listen to me one more time. Your name is sitting in column C and your bonus is sitting in column K. बस इतना याद रखते हैं, C and K. अब मैं VLOOKUP को बोलता हूं कि रजत को ढूंढना है तुझे। मुझे बोलता है रजत मैं कहाँ ढूंढूं, तो मैं बोलता हूं टेबल एरे जो है वो C से शुरू करना पड़ेगा। याद रखना, ऑलवेज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम C to K. C is very important because आप A to K नहीं कर सकते हो, क्योंकि VLOOKUP will always search your lookup value only in the first mentioned column, that is this one. अगर आपने A to K किया होता तो वो रजत को A कॉलम में ही ढूंढता, एंड डू नॉट एज्यूम कि अगर उसको A में नहीं मिलता तो वो B में जाता, C नहीं जाता वो। VLOOKUP will only search in the very first specified column. Please, those who are fresh to VLOOKUP, ये मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लो आप. So I say search for Rajat in C. बस इतना इंपॉर्टेंट है. तो आप सोचो कि सर जब वो C में ढूंढ रहे हैं तो why you are specifying till K? Because now I have the liberty कि VLOOKUP को अगर C कॉलम के अंदर रजत मिल गया, so I have the liberty of pulling anything between C to K. मतलब तुमको क्या चाहिए? तुमको बोनस चाहिए ना, तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बोलना है। बोनस इज सिटिंग इन के, और सी जो है वो आपका 1 बन गया, तो सी टू के, तो क्या नंबर हो गया? सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के, 9th। तो बोनस जो है वो 9th नंबर पे आता है। कैलकुलेट कर लो, इफ सी इज 1 देन व्हाट इज के? अंडरस्टूड एवरीवन? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आई विल डेफिनेटली अज्यूम कि सब लोगों को मस्त समझ में आ रहा है। एंड देन आई प्रेस कॉमा 0, y 0, ट्रू फॉल्स। इसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच। वो भी बताऊंगा आपको मैं, एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच सब क्या होता है। व्हेन यू से 0 मींस रजत, ऐसा समझ लो अगर राजा मिल गया किधर तो नहीं लेने का, ऐसा समझ के चलो आप। राजकुमार नहीं लेने का, रजत मतलब RAJAT, क्लोज द ब्रैकेट। एंड नाउ व्हाट ही विल डू इफ आई प्रेस एंटर, वो रजत को ढूंढेगा सी के अंदर, इन सी कॉलम ही विल ट्राई टू फाइंड रजत, एंड वंस ही गेट्स रजत वो उसी रो के ऊपर रहेगा एंड जाएगा सीधा 9th कॉलम के ऊपर, उसी रो पे रहेगा, गो टू 9th कॉलम, और 9th कॉलम में जो भी पड़ा है मुझे बाहर दे दे। जैसे ही मैं एंटर मारता हूं, अगर रजत नहीं होगा तो ही विल गिव मी NA, दैट इज नॉट अवेलेबल। उसने मुझे NA दिया। ओके एवरीवन, इट मींस अगर कहीं पर रजत आ जाए तो वो मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, नाउ लेट्स से लेट अस मेक दिस लियोना। इसको अगर मैं रजत बना दूं तो इसका जो बोनस है 2583 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी उसको रजत मिल जाएगा, राइट? सो आई विल जस्ट टाइप हियर RAJAT and let's see what happens. He got Rajat now. Any questions, please? Welcome. Okay. If there is no question, then please solve this question, everyone. I will be typing the ID. Okay. मैं जो भी ID I will type in M2 में, sorry.
Just remember my question. If I type any ID in M2, I should get the salary of that person. It means if I type here 3851, 3851, as I say enter मारूंगा, I should get 27,823 because 3851 ka salary it's 27,813. Okay, please send me your answers on the chat box after you solve. Everyone, I want the answer from Advait, Surendra Prakash, Prasad, and Sunitha also. Try one more time. Because 4 to 5 examples, I am very much sure, Sunitha, Advait, and everyone, कि आप लोग बहुत अच्छे से VLOOKUP यूज करोगे. स्टार्टिंग में होगा. अब मुझे क्या चाहिए खाली देख लो. I am interested in salary. मुझे चाहिए salary. I am interested in output में salary चाहिए. And what I know is 385. Not sorry, M2. I will be typing in M2. Only 2 answers I got, Nipun and Rajat. एवरीवन में सुनीता ने भेजा है सर. नहीं भेजा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है. पता नहीं एवरीवन में है सर. सुनीता Yeah, तो because I एवरीवन. came out of that. वो Now I'm not logged in. ठीक है चलो. ठीक है, so I'll write the answer here. So I say equals to VLOOKUP. मुझे बोलता what is the lookup value? I say lookup value is this M2. And you all know that M2 के अंदर we are going to write the ID. So he's asking me the table array, and the table array is always you should start where your lookup array is sitting. है ना? तो आपको lookup array आपका कहाँ पर है? It's in G. तो मुझे इसको बोलना पड़ता है G2K. पूरा दे दो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, now G becomes your column number 1. So what you want? I want salary. So salary is 1, 2, 3 and 4. You cannot give like this. जैसे आपने दिया रजत, आपने क्या किया? G2H किया. अगर आप G2H करोगे तो आप यहाँ पे फिर कॉलम 4 नहीं कर सकते क्योंकि you have only 2 columns now, G and H. तो आपको या तो 1 या तो 2 ही देना पड़ेगा. तो G2K करूंगा तो now I can go for 1, 2, 3 and 4. So I can go for this one. Last में comma 0. Make the habit of writing comma 0. And now you press enter. And now if I type 1612, ठीक है? Any questions, anyone? No, sir. Sir, once again, sir, if I type the name, I should get the salary. Yeah. If you type the name, then you should get the salary. ठीक है? Then let me just change this to name. I'll remove this one. Your name is sitting in C. Okay. So I'll say equals to VLOOKUP. Is asking me what you want to look for. I say I want to look for M2, and in M2 I'm going to type the name of my employee. Okay, he's telling me whatever you are going to type in M2. So where you want me to search that? I say go and search in C. Try that is called C column. Okay, I know that C is my name column. Okay, from C2 I say C2K. Always go to the last one. Okay, doesn't matter. So now you can always access any column between C to K. आपको क्या चाहिए था? Salary. Salary is sitting in J. So C is 1. So I think 1, it's 8. 8th column. Yes sir. So I say it's 8th, comma 0. Press enter. Okay. Now if I type here Serena,
It says the salary of Serena is 18915. Okay, what about Shivangi? This is Shivangi. Jude. This is Jude. So on. Okay. Okay, now my next question to you all is this is my database, right? I just want to know the name of the person here. Who is the man? Who is the employee who has the highest pay in the company? Find the name of the employee who is getting the highest pay, मतलब salary. इस कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाले एम्प्लॉय का नाम चाहिए मुझे. आई एम इंटरेस्टेड नेम. कौन है वो? फाइंड करके बताओ मुझे. You can just see the database is in front of you. Okay. So if I want to find the maximum, who has stored, who has the highest pay, so I will say that it's equals to VLOOKUP. मुझे बोलता है what you want to search for, what is your lookup value. This time my lookup value is actually the salary, which is the highest salary. So I'll have to call my max function and ask him that max function, can you give me the max of this? This is what my lookup is asking me. Where you want to look this? I say look into B to C and give me the second column out of this one, and it will give me Nazib. Nazib is the highest getting paid. Everyone understood ना? सर उसमें मैंने जैसे ब्रैकेट के अंदर वापस इक्वल टू किया तो उससे रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मूला. कहाँ पे किया आपने? मतलब जो मैक्स आपने डायरेक्ट लिखा ना तो मैंने उसके पहले इक्वल टू डाला था तो हाँ, रॉन्ग हो जाएगा. ओके सर. इक्वल टू हमेशा एक ही जगह पे आता है. यहाँ पे यू कैन नॉट राइट इक्वल टू हियर. ओके सर. देखना पड़ेगा, देखेंगे तो क्या होता है. या यू आर गेटिंग एन एरर. ओके सर. ओके, नाउ सपोज एग्जांपल ले लो कि ये तो नजीब हो गया, राइट? व्हाट विल यू डू अगर आपका I will write the name like एक मिनट. हाँ, I have one more Rahul over here. It's Rahul Shetty. ठीक है? So I will type here Rahul Shetty, and I should get I want the salary of Rahul Shetty. So मैं यहाँ पे राहुल टाइप करूंगा और साथ में शेट्टी टाइप करूंगा. And I want the salary here. Because if you just type Rahul here, तो तो दो फिर है. हाँ, तो राहुल तो ये इसी को पकड़ लेगा.
तो मुझे इधर मेंशन करना पड़ेगा। सर सैलरी दिखानी, सैलरी 2 दिखानी। सैलरी नहीं दिखा सकते ना, हाँ सैलरी एरर आ 2 ही जाएगा, दिखाना पड़ेगा। एरर आ जाएगा। सैलरी 2 दिखाओ या सैलरी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर पीछे मुझे की वैल्यू नहीं ना उठाएगा वो छोड़ दो, इसी सैलरी आगे है ना, बस हम्म। ठीक है। वो छोड़ दो। हमको ये चाहिए कि आई विल टाइप राहुल शेट्टी है, राहुल शेट्टी का सैलरी कैसा निकालेगा? आई डोंट हैव राहुल शेट्टी हियर, आई हैव राहुल हियर and I have Shetty here. So now surname is sitting in another column, name is sitting in another column. So and I want to look up what idea you will borrow from whom. if वाला फंक्शन सर शायद, Okay, नहीं आइडिया नहीं मुझे भी सर। okay. नहीं, आप लोग अपने हिसाब से you can suggest me कि सर if this would have been in my case, तो सर मैं तो ऐसा जुगाड़ कर लेता था। सर हाँ, चेक जुगाड़, करना ये मेरा देखो आंसर। जुगाड़ू जुगाड़ू है प्रकाश कुमार। वो इमोजी पड़ गया, पता नहीं क्यों। क्या हो गया जयदत्त? मैंने एवरीवन में भेजा, मैंने इमोजी आ गया। ओ वाओ, आपने भेज भी दिया आंसर। ओके, कॉन्क्रीट फंक्शन यूज कर सकते हैं कहाँ पे करेंगे आप? इसमें, जैसे अगर दोनों कॉलम को एक साथ करने के लिए। VLOOKUP में? हाँ सर देखना सी कॉलन डी लिखा है मैंने आंसर में, वो इमोजी आ गया। ओके, आपने क्या किया? VLOOKUP, फिर क्या किया? बोलते जाओ। कॉन्कैट, कॉन्कैट। नहीं, लुकअप वैल्यू देना पड़ेगा ना। आपका लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू तो M2 मेरा यही है ना। M2 ओके यस। M2 लुकअप वैल्यू तो वही रहेगा, बराबर है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि ये जो लिखा है ये मैं कहाँ ढूंढूं? यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम। ज्यादा गर्म है। तो अगर आप यहाँ पे बोलते हो सी, कैसे करोगे इसको आप? क्योंकि सी करते हो तो सिर्फ उसको राहुल मिलेगा, डी करते हो तो शेट्टी मिलेगा। तो याद रखना, VLOOKUP के अंदर इफ यू आर यूजिंग VLOOKUP, then your lookup value should always be exactly the same in the column. तो अपने पास में एक ही उपाय है, concatenate। बिल्कुल बराबर बोला आपने। we'll have to मर्ज द क्रॉस। we'll have to use the concatenate function, या फिर मैं क्या करूंगा, सर कॉन्कैट यूज होगा या कॉन्कैटिनेट होगा? चलेगा कोई भी करो, मैं concatenate करता हूँ। उसमें भी डिफरेंस बता देना इसके बाद। सब बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं तो वो भी नहीं करूंगा फिलहाल, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एंड मैं ऐसा कर देता हूँ एंड दिस, तो आई गेट समथिंग लाइक दिस, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। ज्वाइन कर दिया D2 को और E2 को, एक दिस इज कॉल्ड ए हेल्पिंग कॉलम। इसको मैंने एक हेल्पिंग कॉलम बनाया एंड आई विल ड्रैग दिस डाउन, और उसके बाद में मैं इन लोगों को सबको कंट्रोल C और इसको मैं एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, so that now this column is exactly like this. And then I want to delete, sorry, I just want to hide this column, so I just press Ctrl 0 to hide this column. मुझे यहाँ पे दिखाना ही नहीं है। So now I will say that equals to VLOOKUP. I say this column is asking me from where, so I say it's from C to, आपको क्या चाहिए था मुझे? सैलरी चाहिए था, L तक, L तक ले लेता हूँ मैं, and I think it's 8th column. 9th It's 9 because we added one column now. 0. Let's see. देखो राहुल शेट्टी का इसने मुझे क्या निकाल के दिया, 32,588. Let me check.
Rahul Shetty, correct? Yes. So Uparola Rahul is different. Now he's giving me this one, and this is right. So this time, suppose if I write here Rahul Sharma over here, so I got this one. Okay. Now my question is, okay, now I'll just type the name over here. Okay, I will type the name. ऐसा पूरा नाम लिख दूंगा मैं. And I want to find how many employees are working in this person's department. देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन ध्यान से सुन लो. क्वेश्चन बोलता है, I want to find how many employees are working in this person's department. समझ में आया? आप लोग एवरीवन में आंसर मत देना, डायरेक्ट आंसर लिख के देना है. सपोज इफ आई राइट हियर शिवांगी शुक्ला, और जैसे ही एंटर मारूंगा, आई शुड गेट सम नंबर्स ओवर हियर. सपोज 7 आ जाएगा. व्हाई? सो ही इज गिविंग मी कि जो शिवांगी शुक्ला है लड़की, ओके, उसका डिपार्टमेंट में टोटल 7 लोग काम करते हैं. दैट इज ए डिपार्टमेंट. चलो इसका आंसर लिखो, मजा आ जाएगा. Before a few people are on the laptop, then you have an advantage of, before you send me, you have an advantage of just trying on your laptop once and just check whether it's working or not. अगर चल रहा है तो आप डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट करना है आपको. So Nipun, do you feel that what you had sent me is it really working on your side? सर एक्सेल शीट नहीं खोली है, मैं जस्ट नॉर्मल Okay. टाइप करके भेज रहा हूँ. So nice, very nice. फिर तो अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो. आप तो आप लैपटॉप पे हो तो एक्सेल शीट खोलो ना. है सर, लेकिन एक्सेल शीट ओपन कर रखा है, मतलब वो अच्छा, पूरे इस पे वही है, स्क्रीन है. अभी तक एक भी आंसर नहीं आया मुझे. है कितना सिंपल सा क्वेश्चन, पता है आपको? So such type of question will teach you all कि a small functions can be written in so many ways. आप अगर आप ये चीजें सीख गए ना, फिर आप फॉर्मूला डेवलप, मतलब फॉर्मूला बिल्ड करने में आप बहुत माहिर हो जाओगे. बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा, एक फंक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं नवीन, ये ऐसा नहीं चलेगा. आप खुद ट्राई करके देख सकते हो नवीन, बट यू हैव ट्राइड गुड. क्या बात है यार, ऐसा इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये? नोबडी इज, किसी को भी नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. चलो सॉल्व तो मैं कर दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, मगर आपको सीखना पड़ेगा ये कि हाउ टू मतलब क्लिक. अभी ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं दिया था. ये अभी मेरे को, आप ही को दे रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका बैच बहुत स्ट्रांग है एंड आई कैन गिव यू गुड क्वेश्चंस. सो माय क्वेश्चन वाज कि एनी नेम आई टाइप ओवर हियर, एनी नेम, आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिस नेम. करेक्ट? ये मेरा क्वेश्चन था ना. इस इंसान जो भी नाम लिख रहा हूँ, ये आदमी का जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने आदमी लोग हैं. इट मीन्स आई जस्ट वांट टू काउंट, मुझे गिनना है. अगर मैं आपको बोलता हूँ सिंपल काउंट डिपार्टमेंट ए, तो आप क्या करते हो? इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज, रेंज इज दिस वन, ओके, और इसके अंदर
A, करेक्ट? बराबर है, इतना आता है ना तुम लोग को? Yes. वो बोलता है कि देर आर 18 पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए, करेक्ट? बट नाउ हाउ यू कैन से इट्स ए? तुमको कैसे मालूम पड़ा ए है बी है, हमको क्या मालूम? तो जब वो मुझे पूछता है कि व्हाट इज योर क्राइटेरिया, आई से दैट यू विल गेट इट फ्रॉम वी लुकअप। वी लुकअप को बोलता हूँ वी लुकअप, यू जस्ट सर्च फॉर दिस नेम, कहां पर? C2L एंड गेट मी। तो ये मेरा 9th, ये 8th और ये 7th है। गेट मी द 7th कॉलम आउट। अब ये वी लुकअप जो है वो डिपार्टमेंट निकाल के देगा ना, और आई जो है उसमें से निकाल रहे। सो देर, अच्छा अभी जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवांगी शुक्ला, आई शुड गेट 18 नाउ हियर। तो शिवांगी शुक्ला के डिपार्टमेंट में 18 लोग काम करते हैं। एंड व्हाट अबाउट राहुल शेट्टी का डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 12 लोग। आ रहा है समझ में? सर सर दोबारा जरा वो बताना। फॉर्मूला दिखा दो। वही अकाउंटिव किया मैंने। काउंटिव इज आस्किंग मी 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक रेंज, और इस रेंज में क्या गिनने का है। तो ऐसे रेंज इज I to I, दैट इज डिपार्टमेंट का रेंज। फिर मुझे पूछता है इस रेंज में मैं व्हाट यू वांट मी टू काउंट, I say that I don't know what you want me to count, what to count. It can be A, B or C. That VLOOKUP will give you. Is it A, B or C? Or VLOOKUP को I'm calling and I'm asking him VLOOKUP, so search for this name and get me his department out. And this department वो इसको दे देता है। जैसे मैं अभी इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा ना, अब मुझे बताएगा ये कि इसने काउंटिव को क्या दिया। So VLOOKUP gave out B, and B is nothing but the criteria of countif, which is dynamically coming from up. ठीक है ना? तो F9 किसके लिए होता है? F9 इवेल्युएशन के लिए, मतलब अंदर मुझे फॉर्मूला देखना है कि एक्चुअली what this is doing for me, ये क्या करके आ रहा है। तो I'm just selecting the VLOOKUP part, and if I press F9, he is giving me the actual output in the formula itself. ओके ताकि मैं एंटर मारने से पहले एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि अच्छा ओके दिस इज फाइन डन। आई प्रेस कंट्रोल Z नाउ, डोंट प्रेस एंटर, बिकॉज इफ यू प्रेस एंटर योर फॉर्मूला विल गो देयर, तो स्टैटिक बी हो जाएगा। वो चेक करने के लिए होता है। तो अगर मैं ऐसा ओके करता हूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, ऐसे इट्स B to B। okay, before I press enter, suppose if I come here and select this and press F9, he's showing me this is what you're going to get. I say that's fine then. अंडरस्टूड। टोटल सैलरी मारो, टोटल मारो किसका? सैलरी का। लेकिन किसका सैलरी का? ये बंदे का पोस्ट का। ठीक है, अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन सो दैट थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। वॉट एवर नेम आई टाइप, whoever it is, if this man is a director, then get me the total of directors. If this man is an accountant, then get me the total of accountant का सैलरी। मैं जिस भी बंदे का यहाँ पे नाम टाइप करूंगा, उस बंदे का जो भी पोस्ट है, उन सब पोस्ट का मुझे टोटल सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी ऑफ दैट पोस्ट। चलो स्टार्ट करो।
हाँ, आपने लिखा था प्रकाश जी काउंटिव फंक्शन, करेक्ट, आपने सबसे पहले लिखा था। मैं समझ गया आपके पास मोबाइल नहीं है ना इसके लिए, लेकिन आपने एवरीवन में डाल दिया, एवरीवन में मत डाल। मिस्टेक हो गया। हाँ, वो आप मोबाइल पे नहीं टाइप कर रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। करेक्ट, ओनली आई रिसीव फ्रॉम प्रकाश। Okay, before I type the answer, I just want to ask रजत, रजत जो मेरा ये क्वेश्चन था, हाँ जी, आप खाली मुझे इतना बताओ कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट, आई सम वांट ऑफ सैलरी, आई वांट द सम ऑफ सैलरी, राइट? जो जो भी आप हाँ नाम टाइप करके उसके डिपार्टमेंट की सम ऑफ हाँ, सैलरी, चलो उस ठीक है, डिपार्टमेंट में जितने पर्सन है उसकी सैलरी ओके ठीक है, का चलो सम। मैं, हाँ फाइन, तो ये सपोज कुछ इट्स समवेयर ओवर, ठीक है ना, यहाँ पे पड़ेगी। हाँ, इस बंदे का डिपार्टमेंट नहीं, इस ये बंदे का जो भी पोस्ट है, मैंने बोला कि वट एवर नेम आई टाइप, so whoever this man is, if he is an accountant, then I want the total sales of accountants, right? तो ये काम यस, मुझे कौन करके देगा, रजत और निपुण? आपको ये पहले पता होना चाहिए। यस निपुण, सम इफ यस, बिकॉज या तो ये सम कर, whenever you talk about total ना, तो either it is done by sum, it can be done by sum if it's more than one condition then sum ifs, or if you want dynamic then d sum। ये लोग चारों जन टोटल लेने का काम करते हैं। अब ये लोग की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायनामिक की जरूरत नहीं है, आई जस्ट डोंट नीड मोर कंडीशंस नहीं है, तो ये भी जरूरत नहीं है। सम तो कर ही नहीं पाएगा बिकॉज वो एक भी कंडीशन नहीं लेता है, एंड हियर आई हैव कंडीशन, सो आई विल कॉल फ्रॉम हियर, किसको बुलाऊंगा मैं इस बार, समीफ को बुलाऊंगा। इक्वल टू समीफ को सम बोलता हूं मैं, लेट मी सी हाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ओके इफ आई से इक्वल्स टू सम इफ। नाउ सम इफ मुझे पूछता है रेंज, रेंज मतलब रास्ता जहां पे तुम्हारा क्राइटेरिया है, एंड व्हाट इज माय क्राइटेरिया, माय क्राइटेरिया इज द पोस्ट ऑफ दिस मैन। ओके, सो ये मेरा पोस्ट कहां पर है, माय क्राइटेरिया इज माय पोस्ट, तो पोस्ट इज सिटिंग इन आई, व्हिच आई तो मैं इसको बोलता हूं कि सम इफ गो इनटू आई कॉलम एंड लोकेट फॉर search for the post of this man, and that you will be getting it from VLOOKUP, और VLOOKUP को बोलता हूं can you search this one from C to K and get me the post out, that is कौन सा रहेगा ये, 8 है क्या, पता नहीं, आई डोंट नो, C से चालू हो रहा है ना, तो CDEFGHI, 9, 7 है, ओके आई, ओके सर, ओके राइट, इट्स 7, 7,0। नाउ दिस एक बार चेक कर लेते हैं कैसे, एंटर मारने से पहले जस्ट ये VLOOKUP को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, एंड आई प्रेस F9
अच्छा, बट आई डोंट हैव द नेम्स ओवर देयर, तो अभी नहीं आएगा NA, क्योंकि यहाँ पे नाम ही नहीं है ना। चलो ठीक है, एंड देन आई से कॉमा इज आस्किंग मी सम रेंज, तो आई से सम रेंज इज माय J to J, J2J। हो गया। मैंने Press भी सर enter. 7,0 तक किया था, ये लास्ट वाला रेंज वाला पता नहीं चल रहा था कौन सा था। Okay, so now how he is doing that? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल शेट्टी। अब राहुल शेट्टी का जो भी पोस्ट है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ आना नहीं चाहिए था। ओके, लेट मी सी नाउ, आई टू आई, ठीक है ना, आई टू आई, थोड़ा जूम माइनस करते हैं। ओके, प्रेस F2, आई टू आई इज पोस्ट, ओके। इसके अंदर VLOOKUP, so I'll just select this VLOOKUP and I'll just check ये VLOOKUP क्या दे रहा है। I press F9, okay, it's giving me NA, मतलब सर राहुल शेट्टी एक साथ आपने शायद टाइप किया है। हाँ, तो लेकिन वो C में तो है ना, लेकिन ये नहीं है। नहीं है सर, शायद आपने चेंज किया ना, मैंने चेंज पता किया, नहीं, दिख भी नहीं रहा। हाँ हाँ है ही नहीं, है ही नहीं, है नहीं। तो मैं सिर्फ राहुल ले लेता हूँ, चलो, नो राहुल शेट्टी दिस टाइम, फाइन, आई विल गो फॉर ओनली राहुल नाउ। सो नाउ आई गॉट दिस टोटल, बिकॉज दिस टोटल किसका है चेक करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग अगर VLOOKUP में जाते हैं, he will give me the post of राहुल। I press F9, it's CS, राहुल जो है वो CS है। तो समीफ को CS मिल गया और समीफ इसमें से CS उठा के डाल रहा है। आप चेक कर सकते हो राहुल CS में है क्या। यस, आ गया, समझ में आया तुम लोग को। See how we are putting in Samif also we are putting VLOOKUP. अब हो सकता है in VLOOKUP also I can put, instead of M2 I can put something. Something is coming which I don't know. और वो राहुल दे रहा है, तो मैं क्या करूं अभी। I am also not sure whether it is Rahul or no. So again some VLOOKUP is also giving Rahul to someone, और वो इस कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है ना। आगे सबको रजत समझ में आया ये। सर एक बार दोबारा करवा दो। देखो ये VLOOKUP क्या कर रहा है। तो जूम माइनस कर दो थोड़ा। अच्छा, सो समिफ क्या कर रहा है, आई टू आई रेंज के अंदर ही इज लुकिंग फॉर दिस, ये ढूंढ रहा है वो। ये VLOOKUP क्या कर रहा है, VLOOKUP नाम ढूंढ के मुझे वो पोस्ट निकाल के दे रहा है, देखो आप। तो ये जो पोस्ट निकाला है ना वो राहुल का है, ये VLOOKUP ने किया है। M2 में जो भी बंदा है ना उसका 7th कॉलम निकाल के ये दे रहा है समीफ को, और समीफ CS का J में जाके, J मतलब सेल्स, इसमें जाके टोटल मार रहा है। ठीक है। अगर आप लोगों का अभी ऐसा नींद नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है, तो आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट यू। नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन अभी दूं कि बाद में करना है? अभी दे दो सर। अगर अभी लेना चाहते हो तो ले लो, थोड़ा दिमाग को फ्रेश रखना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन के लिए, चलेगा। यस यस। सर। सब लोग फ्रेश, ओके। ओके, एज्यूम करते हैं कि दिस टाइम, अच्छा सॉरी, अब मैं चाहता हूं कि आई विल टाइप द नेम, बस ये मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके दो। मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा और मुझे इस बंदे का सेल्स आ जाना चाहिए, सेल्स सैलरी जो भी है। अब डेटाबेस देख लो, आई हैव द नेम हियर, इट्स सरनेम, आइटम, लोकेशन, आईडी, डिपार्टमेंट, पोस्ट है, और ये बोनस नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे बताओ कि मैं
जब ये बंदे का नाम टाइप करूंगा तो मुझे उसका टोटल सेल्स कैसा मिलेगा? ओके, तो दूसरी शीट में। टोटल सेल्स जो है वो दूसरी शीट में ऐसा पड़ा हुआ है। ओके, एंड द कॉमन बिटवीन बोथ द शीट्स इज आईडी। इसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पर राहुल लिखा तो राहुल जो है उसका आईडी क्या है? 3117, राइट? वो 3117 पे मैं तो राहुल लिखूंगा, वो 3117 से फाइंड आउट करना चाहिए इफ दिस इज द, ये देखो ये राहुल का आईडी हो गया, तो टोटल सेल्स उसका 41615। So how will you do this? I will just type the name in K2 and I should get the sales which is actually sitting in column and another sheet. ये कर लो, उसके बाद सो जाओ तुम आराम से। और अगर सॉल्व कर लोगे तो नींद आएगी। मेरे जैसा आदमी तो रात भर नहीं सोएगा अगर ये सब सॉल्व नहीं होता। नेम सी में बैठा है और सेल्स जो है वो शीट 2 का बी में बैठा है। जिस शीट में नाम है वहां पे सेल्स फिगर्स नहीं है। आई डोंट हैव द सेल्स फिगर्स इन द शीट वेयर द नेम्स आर, एंड इन द सेल्स शीट जहां पे शीट 2 में सेल्स है वहां पे नाम नहीं है मेरे पास। लेकिन दोनों कॉमन, एक कॉमन कड़ी है दैट इज आईडी, और यहाँ पे जो आईडी है इन शीट 1 वो जी में बैठा है। ओके, माय क्वेश्चन वाज, मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा और मुझे इस नाम का सेल्स चाहिए, करेक्ट? नेम जो है वो मेरे सी कॉलम में बैठा है एंड सेल्स जो है वो मेरे शीट 2 के बी में बैठा है, करेक्ट? ओके, दोनों के बीच में जो एक कॉमन कड़ी है वो है आईडी, और वो आईडी जो है वो हमारे जी के अंदर कॉलम में बैठा है, राइट? यस सर। ओके, नाउ आई विल आस्क सेल्स। सबसे पहले मैं VLOOKUP को बुलाता हूं और VLOOKUP को बोलता हूं VLOOKUP, तो एक काम कर, ये बंदे को ढूंढने का है तेरे को। मुझे बोलता ओके सर, कहाँ ढूंढने का? मैं बोलता हूँ सी में ढूंढने का है तेरे को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सी से मैं क्या ढूंढूं? मैं बोलता हूँ एक काम कर, तू सी से आई तक आ जा। ओके, नाउ ही इज आस्किंग मी इफ आई गेट दिस मैन इन ड्राइव इन सी, सो बाहर क्या निकालूं? ऐसे एक काम करना, बाहर आईडी निकाल, बिकॉज सेल्स, मुझे सेल्स चाहिए लेकिन सेल्स तो है नहीं यहाँ पे, तो तू एक काम कर आईडी निकाल दे। अच्छा, आईडी का कॉलम जी है, सो सी डी ई एफ एन जी, दैट इज फिफ्थ वन। अच्छा, इतना करके मैं अगर जैसे ही एंटर मारता हूं तो एक बार चेक करते हैं हम लोग कि क्या ये राहुल का आईडी निकाल रहा है। यस, 3117 राहुल का आईडी है, करेक्ट? ओके, दैट्स नाइस। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरा फंक्शन ये क्या कर रहा है? ये आईडी निकाल रहा है। ये आईडी निकाल रहा है ना, ये आईडी दे देता हूँ ना इस VLOOKUP को, ओके, खत्म। मैंने उल्टा किया। अब VLOOKUP को ये आईडी दे देता हूं और VLOOKUP को बोलता हूं कि ये जो आईडी तेरे को ये VLOOKUP ने दिया है, सर्च दिस आईडी इन शीट 2 का A to B, और मुझे सेकंड कॉलम बाहर निकाल के दे विच इज माय। अभी समझ में आ रहा है आपको? अभी इसको एक काम यस करो, सर। ये VLOOKUP को ना सिलेक्ट करके मैं सिर्फ F9 करता हूं एंड नाउ सी द फॉर्मूला क्या हो रहा है। तो 3117 वो ढूंढ रहा है शीट 2 के A में और निकाल के दे रहा है सेकंड, विच इज फैंटास्टिक, दिस इज व्हाट आई वांट। नाउ यू प्रेस एंटर, राहुल का सेल्स दिखा रहा है 41615। ओके, एंड इफ आई से जूड, तो ये जूड का सेल्स है 25,406। लेट अस वेरीफाई दिस। आई गो टू जूड, कहां पर है? ये रहा। ओके, एंड व्हाट इज द आईडी ऑफ जूड? इट्स 1972।
go and check in sheet 2 1972 क्या 25406 है? Yes, 1972 का total sale is 25406. So in this way you can have multiple VLOOKUPs. Yes, sir. Okay, हो सकता है कि sheet 2 के अंदर I have one more this one called location IDs, ऐसा कुछ तो. Okay, and I have say the locations like Pune, or I have Bandra, or I say Mumbai, Delhi, and so on, right? And I just want now कि you type the name and I should get the location here. तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? I say equals to VLOOKUP. I say it's VLOOKUP. लेकिन ये sheet 3 में चाहिए था मुझे. तो ये जो है location ID है ना, तो इसको मैं ID डाल देता हूँ यहाँ पे. It's 1, 2 and 3 and 4 and 5. ठीक है, ऐसा ID है मेरा. And this again ID, I will select it. I'll come here and this locations are stored over here. And this time it's stored like this. Okay, it's something like this. It's Bandra, it's Delhi, it's Chennai, it's UP and MP and so on. और अब मैं बोलता हूँ कि ये बंदा किधर रहता है, इसका लोकेशन अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है. सपोज द लोकेशन इज नॉट हियर, देन वेयर, ऐसा देना पड़ेगा. देखो, इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, VLOOKUP ब्रैकेट ओपन. पहला वाला VLOOKUP को जुड़ को ढूंढेगा वेयर C से लेकर F तक. अब मिल जाता है CDEF, तो फोर्थ कॉलम बाहर निकालेगा, दैट इज ID. दिस ID वो दे देगा शीट 2 को, राइट? सो दिस विल बी गिवन टू शीट 2 का A to C और निकाल के देगा थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम के अंदर लोकेशन आईडी पड़ा हुआ है. दिस लोकेशन आईडी विल बी गिवन अगेन टू ये वाला VLOOKUP जो शीट 3 में जाकर A to B में चेक करेगा और मुझे सेकेंड कॉलम बाहर निकाल के देगा. नाउ यू प्रेस एंटर. जूड का लोकेशन ही नहीं था, इसके लिए नहीं दिया उसने. आई जस्ट चार ही थे ना. यू कैन जस्ट सी दिस, राहुल यूपी में बैठा है, ऐसा करके मैं दे सकता हूँ. समझ में आ रहा है? शिवांगी इज इन बैंड्रा. So you see how it can be. Your VLOOKUPs can look like this also. है वही चीज. If you see all at once, you are going to go crazy. Don't look all at once. Just figure it out in this way. What everybody is doing. So the last VLOOKUP. Just see this VLOOKUP. ये क्या करता है? Press F9. This VLOOKUP is giving me the location ID. Searching for this ID. और ये okay. Now I am asking you. ये VLOOKUP क्या करता है? सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाला स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और इट इज गेटिंग ओवर समवेयर ओवर हियर. ये 1 निकाल के देता है. एंड व्हाट इज 1? 1 इज द लोकेशन आईडी. ओके, वो ये VLOOKUP को दे रहा है. फिर ये VLOOKUP क्या करता है? ये लोकेशन आईडी से पूरा निकाल के देखता हूं मैं. तू क्या कर रहा है पूरा? तो बोलता है भाई मैं तो ऐसा बैंड्रा निकाल के दूंगा. सो वन बाय वन यू कैन ऑलवेज चेक. Thank you so much. We'll meet again day after tomorrow. Expecting you to be with the videos on, please, because मुझे पता. Thank you Nipun for always being on video. नहीं तो मैं सो जाता था. मेरा आधा एनर्जी डाउन हो जाता है. ऐसा लगता है whom I am teaching, I don't know. Anyways, see you people a day after tomorrow. We'll do more VLOOKUPs. VLOOKUP बाकी है. Bye. Good night. Yes, sir. Good night. Good night.